My fault. Yeah. So what I was saying now, so in thermodynamics and thermochemistry, first thing, what I told you that this chapter is very, very important because of two, three reasons. First thing is there is no year in which there was no question coming from thermodynamics and thermochemistry. Definitely, you are going to get one or more questions from this chapter. Okay, that's first point. Second point is it is conceptually and numerically strong and difficult also. That means questions can be very easy, question can be very, very difficult also. That's second point. Third point is that it is a chapter which is many parts of this chapter will be common in physics and chemistry, and that's why you'll find that आप इधर की लर्निंग उधर यूज कर सकते हो, उधर की लर्निंग इधर यूज कर सकते हो. There is just one point which is different in physics and chemistry, and that is the interpretation of a term called work. We'll talk about that during the discussion of first law. That's one part, but many things will be common. There are extra sections in chemistry, like thermochemistry is there, which will not be taught to you in physics, because chemistry या chemical reaction से related वहाँ कुछ नहीं पढ़ाएंगे. तो the complete section of thermochemistry will not be taught to you there. Second law का interpretation can be in two terms. One is like Carnot cycle होता है, efficiency of engine के term में आएगा. That will be taught to you in heat and thermodynamics in physics also. But the interpretation of second law in terms of something called Gibbs free energy or entropy, generally that is not taught in physics. Okay, so again chemical reactions जाएंगे वो तो उधर होगा नहीं. So this is longer chapter in chemistry, a shorter chapter in physics, but numerically, conceptually, laws of thermodynamics are same in both the subjects, है ना. So that is third point. Fourth point जो मैंने बोला कि there will be many other chapters in which you'll be applying the concept and the that means you'll be applying this chapter conceptually and or numerically. So like we are going to use this these things in next chapter, chemical equilibrium, sometimes in ionic equilibrium, many times in electrochemistry, sometimes in solution and colligative property. So you'll find that there is a chapter called surface chemistry. ऐसे बहुत सारे chapters हैं जहाँ पे thermodynamics and its laws will be coming time and again. So very, very important chapter, and that's why I'm telling you. And it is highly conceptual chapter. So wherever you are finding it difficult to understand even a single word, if you are not clear about that, just let me know. Just resolve your doubts, है ना. If you keep resolving your doubts, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएंगे because you have understood the chapter. बाद में हम लोग न्यूमेरिकल डिफिकल्टी में भी जाएंगे, बट यू विल फाइंड दैट कि तुमको बहुत सारी चीजें डायरेक्टली देख के मुस्कुरा के टिक लगा दोगे. ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग जेई मेंस एंड एडवांस कि यार सर ने तो ये बताया था, वी हैड डिस्कस दिस, आई वाज हैविंग डाउट्स इन दिस कांसेप्ट एंड इट वाज ऑलरेडी डिस्कस. सो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया डायरेक्टली क्वेश्चंस में मिलते हैं, मेंस एज वेल एज एडवांस में बता रहा हूँ. दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग इज ये जब पूरा जो चैप्टर चलेगा इट विल हैव थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उसके पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स तो डिस्कस करेंगे, देन वी विल एंटर इनटू फर्स्ट लॉ. देन फर्स्ट लॉ की बेसिस पर व्हाटएवर वी विल बी लर्निंग ना, दैट विल बी अप्लाइड टू थर्मोकेमिस्ट्री. दैट मींस केमिकल रिएक्शंस में वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट. देन वी विल लर्न सेकंड लॉ, एंड सेकंड लॉ का थर्मोकेमिस्ट्री भी उसके साथ ही देख लेंगे. दिस विल बी द फ्लो ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट लॉ in the process, thermodynamic processes, then first law in thermodynamic chemical reactions, then second law in processes as well as in the reactions. There are two more laws of thermodynamics. One is zeroth law, one is third law. सिलेबस में लिख के देते नहीं है, बट आई लेट यू नो दोज लॉज ऑल्सो. एक दो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं थर्ड लॉ पे, बट जीरोथ लॉ तो बहुत ही सिंपल, मैं एक लाइन बोलूंगा तुमको बात समझ में आ जाएगी, बट विल डिस्कस दोज लॉज ऑल्सो. ठीक है, तो ये पूरी चीजें हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, फर्स्ट थिंग इज I always say that see the syllabus. Officially, they have given you a syllabus, and that's why we need to understand that they're going to ask the questions from there only. We will be obviously going 10%, 20% extra to that written syllabus. But ऐसा नहीं कि अब दुनिया भर का thermodynamics, thermochemistry पढ़ रहे हैं. If you are not taking computer science in graduation, if you are taking electrical, mechanical, civil, chemical, metallurgy, you will be facing this chapter again, and a giant version of it will be presented to you during your graduation, है ना. It will be very difficult. I remember that IIT Bombay में there was a paper of 10 marks. I think class average was less than 1 mark. Class average. I'm talking about IIT Bombay chemical engineering. Last rank will not be more than 1000 at my time. It was 960 something पे close हो गया था वो रैंक. जेई का रैंक बता रहा हूँ मैं. ये सारे रैंक के बच्चे उस क्लास में थे, क्लास रैंक वाज, क्लास एवरेज वाज लेस देन 1 मार्क. मुझे पिटाई लग गई थी बिकॉज आई हैड गॉट 0.5 मार्क्स अपने
अपने विंग में मुझे पीट दिया गया कि तेरे को 0.5 मार्क्स क्यों आया। 0.5 मार्क्स क्यों आया? क्योंकि मैं 1 घंटे तक कुछ ना कुछ फाइट मारा था, एंड बेस्ड ऑन माई फाइट फैकल्टी को दया आ गई मेरे पे, उसने बोला इतनी फाइट मारी तो कुछ तो मार्क्स देना पड़ेगा, मेरे को जीरो नहीं दिया। बट मेनी ऑफ दोज स्टूडेंट्स हैव गॉट 0 मार्क्स बिकॉज उनको कुछ नहीं हवा लगा कि चल क्या रहा है क्वेश्चन। तो दैट टाइप ऑफ डिफिकल्टी विल बी गेटिंग इन ग्रेजुएशन, बट इट विल बिकम ईजियर अगर तुमको ये बातें अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो समझ में आ जाती है, और वहां पर थोड़ा सा पढ़ लोगे तो। क्या होता था ना, क्विज वगैरह जो 10 मार्क्स 5 मार्क्स के होते थे उसके लिए कोई पढ़ के नहीं जाता था, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सिचुएशन यूज्ड टू कम। बट फाइनल एग्जाम में ऑब्वियसली सब पढ़ के जाते थे ताकि पास भी करना होता है ना। तो दैट वाज अनदर पार्ट, बट अगेन लाइक आई टोल्ड यू, इफ यू आर नॉट टेकिंग कंप्यूटर साइंस यू हैव टू फेस दिस चैप्टर अगेन। किसी भी डिपार्टमेंट में मैंने स्टार्ट से एंड तक बता दिया, अदर देन एकदम से तुम कहीं और चले जाओ कुछ और चैप्टर ले लो। बट लाइक आई टोल्ड यू ऑल द डिपार्टमेंट्स आई टोल्ड यू, एरोस्पेस में भी आएगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी आएगा, सब में आने वाला है। अदर देन कंप्यूटर साइंस यू हैव टू फेस दिस चैप्टर, ठीक है, इफ यू आर इन इंजीनियरिंग, है ना। तो आई विल बी शोइंग यू द सिलेबस, दिस इज द सिलेबस जे एडवांस एज वेल एज जे मेंस। जे मेंस थोड़ा लंबा लिख के देता है, डिटेल में ज्यादा दे देता है। जे एडवांस इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स लाइक, हम लोग स्टार्ट ही करेंगे विद सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, सम ऑफ द बेसिक टर्म्स लाइक what is system, what is surroundings, what are properties में we can have intensive और extensive property, what are state function, what are path function, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, ऑब्वियसली वर्क की बात करनी है, हीट की बात करनी है, इंटरनल एनर्जी की बात करनी है, इंथैल्पी की बात करनी है, ये सारे टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये इनफैक्ट इफ यू सी ना, यहां तक दिस इज द पार्ट विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एज वेल एज थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, ये सारी चीजें यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लॉ की का स्टार्ट है। इसमें इन्होंने देखो सिंपली इंट्रोपी की बात की है, गिब्स एनर्जी की बात की है, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी की बात की है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इफ यू सी द जेई मेंस का सिलेबस अगेन, उन्होंने वही वही सिस्टम, सराउंडिंग्स, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी, देखो कहीं भी उन्होंने थर्ड लॉ या जीरो लॉ लिखा नहीं ऑफिशियली, ठीक है। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दोज थिंग्स, बट जीरो लॉ एक लाइन की चीज है तो एक लाइन इतना पढ़ ही रहे तो एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। थर्ड लॉ इज मोर कंसेप्चुअल, बट उसकी लिमिटेशन है, लिमिटेड वे में आई विल बी टीचिंग यू दैट ऑल्सो। थर्ड लॉ भी बताऊंगा मैं, एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, इट इज टू डिटरमिन द इंट्रोपी, एब्सोल्यूट इंट्रोपी कितनी होती है उसके कैलकुलेशन के लिए, दैट इज रिक्वायर्ड। वो भी बात हम लोग करेंगे थोड़ी सी। तो मेनली देखोगे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पे फोकस करना है। फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट द accountability of energy. It is related to conservation of energy. We'll be talking about some thermodynamic process or some chemical reaction undergone by a system, and in that we'll be talking about the accountability of energy. That means energy can be received by the system, energy can be released by the system. ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो हम लोग करने वाले ना, it will be following that only. So that's first part. Second law talks about कि वो प्रोसेस हो भी पाएगा कि नहीं जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, या फिर कोई रिएक्शन हो रहा है की बात कर रहे हैं, वो होगा कि नहीं। दैट मींस आई विल टेल यू एन एग्जांपल। I say that H2 plus half O2 will be giving you H2O, and it will be releasing some particular amount of energy. Now, if I'm talking about the reverse reaction, that means H2O giving H2 and half O2, I'll be telling you that if you want to perform it theoretically, that means this will be consuming this much of energy. मान लो H2 plus half O2 giving H2O से X kilojoule energy was released, then you will say that H2O को H2 and half O2 में convert करने के लिए you will be consuming, the system will be consuming X kilojoule of energy, है ना। But we know that कि water रख के ऐसा H2 और O2 अपने आप नहीं निकलता उससे ना। तो विल बी टॉकिंग अबाउट कि ये H2O2 से H2O का बनना स्पॉन्टेनियस है, या फिर H2O से H2 एंड O2 का बनना इज स्पॉन्टेनियस। तो दैट इज डेल्ट बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दैट मींस फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट if the reaction or process occurs, what will be the energy exchange between the system and surrounding in different forms, and what will be the effect of that energy exchange on the internal energy of the system. So that is the first law. We'll talk about that in detail. मैं अभी रफ एक आइडिया दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट इज द सेकेंड लॉ सेज जिस प्रोसेस या रिएक्शन की बात कर रहे हो वो स्पॉन्टेनियसली होने वाला भी है कि नहीं। दैट मींस वेदर इट विल अकर स्पॉन्टेनियसली ऑन इट्स ओन और इट विल रिक्वायर अ कंटिन्यूअस एक्सटर्नल सपोर्ट। जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, इफ यू आर पुटिंग सम कंटेनर में H2 एंड O2, ऐसा कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। बट इफ यू जस्ट क्रिएट अ स्पार्क, then a very violent reaction, very highly exothermic reaction will be occurring, which will be preparing, which will be forming H2O. Is it okay? But if I want H2O to give H2 and O2, क्या करना पड़ता है? वाटर से H2 और O2 के लिए क्या चाहिए? What do we do? Devika, you're on mute. Devika? Yeah, so is it electrolysis? Yes, very good. So we need to do electrolysis, and if you know the basic of electrolysis, we have that chapter in 12th class also. We'll go in detail about that. But if you know about that, उसमें हम लोगों को continuously electricity देनी पड़ती है ना।
That means the conversion of H2O into H2 gas and O2 gas will require continuous external support. Such type of reactions or processes are called non-spontaneous reactions or processes. Is it okay? जैसे मैंने अभी आपने टेबल पे आइस रख दिया ना, वो मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा, बट अभी मैंने पानी रखा हुआ है, वो आइस नहीं बन रहा है ना? तो दिस इज अबाउट विच प्रोसेस विल अकर स्पॉन्टेनियसली, विच विल नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली, दैट मीन दैट विल रिक्वायर कंटिन्यूस एक्सटर्नल सपोर्ट. दैट मीन वही ग्लास ऑफ वाटर को ना मैंने अगर फ्रीजर में डाल दिया तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म आइस, है ना? तो विल टॉक अबाउट कि कौन सा प्रोसेस या कौन सा रिएक्शन खुद से होने वाला है, किसको एक्सटर्नल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूसली. H2 और OT के रिएक्शन में भी इनिशियल सपोर्ट वाज रिक्वायर्ड, दैट वाज अ स्पार्क, बट आफ्टर दैट इट विल बी प्रोसीडिंग ऑन इट्स ओन, है ना? तो ये पूरी कहानी बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू व्हाटएवर सेंटेंस आई एम यूजिंग ना, बोल के या लिख के या टाइप्ड फॉर्म में जो तुमको मैं नोट्स देता हूँ, if you are not clear about even a single word, just ask me the question. If you are crossing this chapter in that manner na, that I cannot compromise in my understanding ना, तो क्लास के एंड में तुमको, लेक्चर के एंड में पता चलेगा कि हाँ अब मेरे को बात समझ में आ रही है. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द क्वेश्चंस ना, तो बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, विल डू दैट आल्सो, है ना? तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. एंड लाइक आई टोल्ड यू, स्टार्ट हम लोग जो करेंगे, विल टॉक अबाउट द बेसिक टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर. लाइक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या है, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज के टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज जब चेंज होती हैं तो क्या होता है, तो प्रोसेस किसको बोलते हैं, प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस पॉसिबल हैं, ये सब बातें करेंगे. बट इसमें सबसे पहली बात, जो चैप्टर का नाम है उसी को देख लेते हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम डायनेमिक्स ऑफ थर्मल एनर्जी, दैट मीन्स हीट जिसको बोलते हैं. तो ऐसा लग रहा है कि हीट के डायनेमिक्स की बात हो रही है, दैट मीन्स हीट के मूवमेंट की बात हो रही है. बट इन जनरल आई विल से दैट कि इट इज द डायनेमिक्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट एनर्जेटिक्स. बहुत जगह देखोगे इस चैप्टर का नाम लिखा रहेगा एनर्जेटिक्स, है ना? दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग. ओके, सो नाउ I'll mention that name also, so that sometimes if you see ना, कुछ कुछ तो कोचिंग के बुकलेट्स में भी देखोगे, उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री की जगह दे विल बी राइटिंग एनर्जेटिक्स. एनर्जेटिक्स का मतलब ये, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट एनर्जी का एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स. वन ऑफ दोज फॉर्म्स इज हीट. ओके, सो आई राइट द नेम ऑफ दिस chapter again. So this is also called, it is not working. Yeah. This is also called energetics. Okay, now, so like I told you, we'll be talking about ki energetics में क्या पढ़ने वाले हैं. तो like I told you, we are going to talk about the energy exchange between system and surrounding, and while the system is trying to exchange its energy with system with its surrounding, then whether that process will be spontaneous or not, that means we'll be talking about the occurrence of reactions spontaneously occurring, or it will require one minute, whether it will require a continuous external support. So that part will be covered in second law. One minute, what is happening? Yeah. So now, like I have written here, thermodynamics deals with exchange of energy between system and surrounding. मैंने जानबूझ के generalize करके दिया है तुमको. एनर्जी का एक्सचेंज है बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स इन वेरियस फॉर्म्स. दो टाइप में डिवाइड करेंगे उसको. एक होता है हीट, एंड हीट के अलावा जो है उन सबको हम लोग बोल देते हैं वर्क. ओके, तो हीट इज जस्ट वन फॉर्म्स आउट ऑफ दोज मेनी फॉर्म्स. बाकी सारे फॉर्म को एक अम्ब्रेला में रखा है, एंड दैट इज कॉल्ड वर्क. ठीक है. थर्मोकेमिस्ट्री की जब बात करेंगे, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, दैट मींस वी विल बी डीलिंग विद केमिकल रिएक्शंस और फेज चेंज, दोनों को हम लोग उसमें कवर कर लेते हैं. तो इट विल बी डीलिंग विद द थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू अ सिस्टम व्हिच इज अंडरगोइंग अ केमिकल रिएक्शन और अ फेज चेंज. Now, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने लिखा है, that is the thermodynamics or the laws of thermodynamics is applicable to the system which is already at equilibrium. That means I am having a system which is at equilibrium, and then if that system is at equilibrium, हो सकता है वो किसी process में जाए in which it will be moving to another equilibrium state. Okay, so thermodynamics कहाँ पे apply होगा? It will be applied to a system at equilibrium, or to the process in which system moves from one equilibrium state to another equilibrium state. Now, when I mention this word equilibrium, what does it mean? So equilibrium state implies three basic terms. When I say equilibrium,
It can have three types of states, and all three should be achieved simultaneously to say that the system is at equilibrium. One is called thermal equilibrium. Thermal equilibrium implies that temperature of system is same as temperature of surrounding. That's why no heat will be exchanged in between system and surrounding at that stage when it is already at equilibrium. Second is मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जिसको तुमको अभी तक फिजिक्स में पढ़ाया होगा, एंड दैट इज नेट फोर्स शुड बी जीरो, है ना. तो दैट वाज सिंपली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. नेट फोर्स ऑन सिस्टम must be zero. And third is chemical equilibrium, which will become our next chapter, in fact, in which we are saying that the net chemical composition of the system is constant. Net chemical composition of system becomes constant. That means when these three equilibria are existing simultaneously, we'll say that system is at equilibrium. So if I want to apply thermodynamics or laws of thermodynamics, we need to ensure that the system was at equilibrium. If it is undergoing some process, ultimately it will also achieve the equilibrium state. Any doubt up to this point? चलो, तो यहाँ पे ये लाइन याद रखना, क्योंकि इसको मैं बार बार यूज करने वाला हूँ आगे भी, इन फ्यूचर भी. ठीक है. तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसकी बात मैंने की थी कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है, ये सब हम लोग बात करेंगे. सो नाउ फर्स्ट थिंग इज about system and surrounding, very basic thing, that whatever part of universe is under consideration for the application of thermodynamics, we'll be calling it our system. That means during a phenomenon we can say that this is my system, and my system can be different from your system, because it is depending on the assumption, है ना, कि कौन से पार्ट को मैं सिस्टम ले रहा हूँ. मेरे लिए मेरा रूम में मेरा सिस्टम हो सकता है, तुम्हारे लिए हो सकता है मेरा पूरा फ्लैट एक सिस्टम हो जाए ना. तो इट विल डिपेंड ऑन दैट कि व्हाट पार्ट ऑफ यूनिवर्स आई एम टेकिंग under consideration for the application of thermodynamics, that will be called the system. ठीक है. सिस्टम के अलावा जो भी बच गया यूनिवर्स में, that means universe minus system becomes the surroundings of the given system. Is it okay? Clear है point? Now अभी क्या होगा, if I am having a particular system, like if I am having a pen, and if I consider that to be the system, the remaining part of universe, including me, including you, including कोई भी यहाँ से पूरा मुंबई ले लो, पूरा महाराष्ट्र ले लो, पूरा अर्थ ले लो, पूरा उसके बाद के प्लैनेट्स ले लो, सारे सारे सैटेलाइट्स ले लो, if you take everything under consideration other than that pen, it will be called the surroundings of that pen. Is it okay? ना ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना एनर्जी के एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी देखते हैं, मास के भी एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी देखते हैं. अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कहीं कोई रियल बाउंड्री है, लाइक इफ आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर and water is my system, then the glass ka surface becomes a real boundary between that system and the surrounding. Then उसके बीच में एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकता है, बट डेफिनेटली वहां पर मास एक्सचेंज नहीं हो सकता उस तरफ से जिधर से ग्लास की बाउंड्री है ना. बट मान लो ऊपर का पोर्शन अगर ओपन है, तो वहां से तो मास का भी ट्रांसफर हो सकता है ना, तो मास का भी एक्सचेंज हो सकता है. आई कैन हैव हाफ ग्लास ऑफ वाटर, उसको मैं एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर सकता हूँ. आई कैन हैव फुल ग्लास ऑफ वाटर, आई कैन रिमूव सम वाटर आउट ऑफ इट, है ना. तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी मास का एनर्जी एंड और मास का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, दैट डिपेंड्स है कि उसके बीच में रियल बाउंड्री है या इमेजिनरी बाउंड्री है. इमेजिनरी बाउंड्री है तो डेफिनेटली इट कैन हैव एक्सचेंज ऑफ मास ऑल्सो. अगर इमेजिनरी बाउंड्री नहीं है, इफ इट इज अ रियल बाउंड्री, देन मास का एक्सचेंज कैन नॉट बी पॉसिबल. हो सकता है एक सिस्टम के लिए बाउंड्री का पार्ट ऑफ इट विल बी रियल, पार्ट ऑफ इट विल बी इमेजिनरी ऑल्सो, है ना. जैसे ओपन कंटेनर ले लिया तो पार्ट ऑफ इट इज रियल बाउंड्री, रिमेनिंग पार्ट विल बी इमेजिनरी बाउंड्री, है ना. So that is the one part. Now based on this real and imaginary boundary, now we can have three types of systems. One is open, second is closed, third is isolated. When I say open system, what does it mean? मैं इनफैक्ट तीनों दे देता हूं मैं एक साथ. सो व्हेन आई से ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब है खुला डब्बा. दैट मीन्स खुला डब्बा का मतलब क्या है, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज एज वेल एज मास कैन बी एक्सचेंज, है ना. तो इफ आई से एक पिक्चर बना के दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन हैव मोर क्लियरिटी. इफ आई एम हैविंग अ सिस्टम इनसाइड दिस ओपन डब्बा, ऐसा कुछ, एंड मान लो इसके अंदर कुछ भी गैस है, कुछ भी है. तो दिस इज, यहाँ क्या है, यहाँ देखो इधर से या इधर से दोनों साइड से मास का एक्सचेंज तो पॉसिबल है. यहाँ से मास का एक्सचेंज पॉसिबल है, एनर्जी का एक्सचेंज इधर से भी पॉसिबल है और इधर से भी पॉसिबल है ना.
यहाँ से भी पॉसिबल है, यहाँ से भी पॉसिबल है। तो ये, नाउ दिस सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मास विद इट्स सराउंडिंग, देन इट विल बी कॉल्ड एन ओपन सिस्टम. Okay, if I'm talking about a closed system can exchange energy but it cannot exchange mass. That means डब्बे को मैंने बंद कर दिया तो now it can have exchange of energy, that is possible. But if I say mass का exchange, not possible है ना, it cannot exchange mass, and that's why we are going to call it closed system. Now the third system is, एक ही पॉसिबिलिटी बची, ना तो एनर्जी ना ही मास. अच्छा, मास एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. मतलब जैसे मैंने मास के एक्सचेंज का प्रोविजन दिया, दैट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री, तो इमेजिनरी बाउंड्री के थ्रू एनर्जी भी तो एक्सचेंज हो ही सकती है. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि इसका उल्टा नहीं हो सकता कि मास कैन बी एक्सचेंज बट एनर्जी कैन नॉट बी एक्सचेंज, है ना, वो पॉसिबिलिटी नहीं है. बट एक एक्सट्रीम केस हो सकता है वेयर वी कैन से नीदर मास नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज. जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अगेन 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते, बट वेरी नियर टू द आइसोलेटेड सिस्टम बना के मैं दिखा रहा हूँ. लाइक आई एम हैविंग क्लोज डब्बा एंड उसको इंसुलेट कर दिया परफेक्टली, एंड वी आर नॉट टचिंग इट. ऐसा नहीं कि इसको लेके भाग गए, तो दौड़ रहे हैं तो फिर से कुछ ना कुछ एनर्जी तो मिल ही रही है इसको, है ना. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. इट इज अ स्टैटिक सिस्टम विच इज कंप्लीटली इंसुलेटेड, कोई भी इसका मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है ना. यहां से हम लोग बोल रहे हैं ना, तो यहां से एनर्जी जाएगा ना ही यहां से मास कुछ जा सकता है ना. तो अगर दोनों अलाउड नहीं है तो फिर देन वी स्टार्ट कॉलिंग इट, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, देन वी स्टार्ट कॉलिंग इट आइसोलेटेड सिस्टम. अभी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हेन आई से दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, वी कैन हैव प्रैक्टिकली टू पॉसिबिलिटी. एक तो ये है कि आई कैन मिक्स सम सिस्टम विच इज नॉट हैविंग एनी इंट्रैक्शन विद इट्स सराउंडिंग्स, है ना. That can be an isolated system if there is no interaction in terms of exchange of energy or mass. Definitely it is an isolated system. Is it okay? But if I say there is no surrounding at all, even then it will be called an isolated system, है ना. There is no surrounding at all. Just see the definition of system and surrounding and tell me when we can have a system which doesn't have any surrounding. Just see the definition of system and surrounding and not tell me. If I say I want an isolated system which doesn't have any surrounding at all, or if I'm having a system that doesn't have any surrounding, what does it mean? कैसे बताएं इसको? डेफिनेशन देखो सिस्टम सराउंडिंग का, अपने आप समझ में आ जाएगा. सराउंडिंग किसको बोलते हैं? यूनिवर्स माइनस सिस्टम. If universe minus system is zero, that means system is the universe, है ना, or universe is the system. That means theoretically, if I consider the complete universe to be our system, it doesn't have any surrounding, then we can consider universe as an isolated system, है ना. So for example, universe is an isolated system. Okay. इसके अलावा और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात बतानी हो तो दे गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट सिस्टम. या तो सीधा वो आइसोलेटेड बोल देंगे, या फिर इसी तरह से बता देंगे देयर वाज क्लोज कंटेनर एंड इट वाज इंसुलेटेड एंड देयर इज नो वे दैट इट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स. ऐसा कुछ एक्सप्लेन करके दे देंगे, देन विल आइडेंटिफाई दैट कि ये डेफिनेटली आइसोलेटेड है, या फिर वो डायरेक्टली वर्ड यूज कर देंगे आइसोलेटेड. बट इफ दे वांट यू टू आइडेंटिफाई दैट यूनिवर्स, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स देन यूनिवर्स, है ना. यूनिवर्स माइनस यूनिवर्स बिकम जीरो, तो देयर इज नो सराउंडिंग ऑफ यूनिवर्स, एंड दैट्स व्हाई विल से universe is an isolated system. Any doubt? Now, the moment I have identified that I am having a particular system and it will have the remaining part of the universe will be its surroundings, उनके बीच में कुछ तो एक्सचेंज होने वाला है. एक्सचेंज होने से क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गया ना. So now the term property comes into the picture, that what is property or what are properties to any parameter which is used to describe the system. Okay, जैसे मैंने बोला आई एम हैविंग एन आइडियल गैस which is having this much temperature, this much pressure, this much volume, this is having these many moles, this is the mass of it,
है ना, इट इज हैविंग दिस मच ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ भी बोल दिया ऐसा, वट एवर आई एम सेइंग ना कि इट इज हैविंग दिस मच ऑफ दिस. So any quantitative parameter which is used to describe the system will be called its property. Is it okay? So then, if I'm talking about the term property, what do you mean by property? तो कोई भी numerical parameter अगर हो जाए, sometimes it can be qualitative also, that means color, like color of the thing, है ना, that can be a qualitative way, but color को भी quantify किया जा सकता है. That means we can talk about its color का क्या इंटेंसिटी है वगैरह, सब कुछ देख सकते हैं ना, उस कलर के एब्जॉर्प्शन के लिए कितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब होता है या रिफ्लेक्ट होता है, ये सब बातें कर सकते हैं. तो इवन वी कैन क्वांटिफाई द कलर ऑल्सो. तो कंसंट्रेशन है, डेंसिटी है, मास है, मोल्स है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये जितनी चीजें हैं ना, इन सबको हम लोग प्रॉपर्टीज बोलेंगे. एंड इफ आई हैव आइडेंटिफाइड ऑल प्रॉपर्टीज का सेट of the system, we call it the state of the system. Is it okay? That means मैंने बोला I am having 1 mole of an ideal gas which is having this much temperature, this much pressure, this much volume, this much density. If I have identified all set of properties, then we start saying that this is the state of this system. Now what will happen ना, अगर सिस्टम ने अपनी एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी चेंज कर ली, वी स्टार्ट सेइंग दैट कि सिस्टम ने अपना स्टेट चेंज कर लिया. ठीक है, सिस्टम हैज गॉन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. नाउ आई विल ब्रिंग यू बैक टू द डेफिनेशन, bring you back to the note which I had given you, that thermodynamics is applicable to the system at equilibrium and to the process in which it is moving from one equilibrium state to another equilibrium state. That means initial equilibrium state was having set of particular properties. Another equilibrium state का मतलब है उसी में से एक या एक से ज्यादा properties have been changed. Is it okay? चलो, तो नाउ व्हेन आई से प्रॉपर्टीज की बात जो मैं कर रहा हूँ, अच्छा एक और पॉइंट मैं बोलता हूँ. मान लो एक सिस्टम है विच वाज एट 100 डिग्री सी एंड देन इट वाज अंडरगोइंग सम प्रोसेस इन विच इट्स टेम्परेचर इज बिकमिंग 120 डिग्री. 100 डिग्री सी से 120 डिग्री. व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, रजिक? व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? 100 डिग्री सी था, 120 डिग्री सी हो गया, 20 डिग्री सी. बट यू हैव नॉट आस्क्ड मी द डिटेल ऑफ द प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेस गया, तुमने डायरेक्टली बता दिया ना. In fact, even if I tell you na ki ideal gas was there which was having this much of initial pressure, this much of initial volume, and if I say the final pressure and volume was this much, you can identify कि initial अगर मैंने pressure volume temperature तुमको दे दिया या फिर pressure volume moles है तो temperature निकाल लोगे. And then if I ask you कि final pressure and volume इतना था, what was the change in temperature, again you can calculate that, है ना. Yes. Now, even in this case, if I have given you the initial state and final state, you are able to identify the change in the property, है ना. And that's why we start calling properties as state functions also. So all the properties can also be called state functions because to know the change in the property, you just need to know the initial and final state of the system. If you just know the initial and final state of the system, you'll say that ki I can calculate the change in the any property, any given property. Okay? You need not know the process undergone by the system. Okay? But there are few things which are which will be requiring the knowledge of the process or the detail of the process to know the value of those type of things. Like one is heat, another is work, जिसकी बात मैंने पहले भी मेंशन की थी. विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. बट ये जो दो चीजें हैं ना, हीट एंड वर्क, इसका डेफिनेशन क्या है वो भी बात करेंगे हम लोग. बट इन दोनों को हम लोग स्टेट फंक्शन या प्रॉपर्टी नहीं कहते, इनको हम बोलते हैं नॉन प्रॉपर्टीज और वी कॉल देम पाथ फंक्शंस. ठीक है, क्यों बोलते हैं पाथ फंक्शन? जैसे मैंने बोला कि सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम इनिशियली इतना था, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम इतना है. बताओ सिस्टम ने कितना हीट रिसीव किया. यू कैन नॉट कैलकुलेट इट विदाउट नोइंग द डिटेल ऑफ द प्रोसेस. और इफ आई से सिस्टम पे कितना वर्क हुआ या सिस्टम ने कितना वर्क हुआ किया है, वी कैन नॉट कैलकुलेट इट विदाउट नोइंग द डिटेल ऑफ द प्रोसेस. एंड दैट्स व्हाई वी से हीट एंड वर्क आर नॉन प्रॉपर्टीज और दे आर पाथ फंक्शन. इसको आगे हम लोग न्यूमेरिकली भी देखेंगे. आई गिव यू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहां पे पता चलेगा मैंने दो अलग अलग प्रोसेसेस में सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट तक ले गया मैं एक सिस्टम को, पता चलेगा दोनों में अलग अलग हीट और वर्क आ रहा है. ठीक है, तो दैट विल गिव यू न्यूमेरिकल प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस. ठीक है, उसमें जाएंगे. बट पहले अभी जैसा मैंने बताया यहाँ पर स्टेट ऑफ सिस्टम डिफाइन किया, मतलब आई हैव आइडेंटिफाइड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. लेकिन अभी नॉर्मली जब देखोगे ना आगे इन फ्यूचर, जब भी मैं स्टेट बताने की बात करूंगा, इनिशियल स्टेट ऐसा था, तो आई विल बी ड्राइंग सम ग्राफ. ठीक है, वो जो ग्राफ में ड्रॉ करूंगा ना, वो ग्राफ में तो दो ही एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नॉर्मली, इफ आई एम नॉट गोइंग थ्री डायमेंशनल, है ना. सो नाउ वी विल बी हैविंग टू एक्सिस. जैसे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ मैंने बना दिया, उसमें बोला ए पॉइंट वाज द इनिशियल स्टेट, बी पॉइंट इज द फाइनल स्टेट.
अभी ए पॉइंट पे तो दो ही चीजें पता है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम. व्हाट अबाउट टेम्परेचर, व्हाट अबाउट इंटरनल एनर्जी, व्हाट अबाउट डेंसिटी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. और मैंने बोला है कि स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब है सेट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज. So how can we say that कि just by knowing P and V I have identified a unique state? तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं तुमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा. बट उसके पहले जितना अभी मैंने बोला है ना वो सब मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे. Like I talked about, properties are also called state functions, first thing, or state variables, because change in their value will require only information of initial and final state, not the path followed during the process. Heat and work are two things which are called two properties. नहीं बोलूंगा मैं because they are not properties, they are नॉन प्रॉपर्टीज और पाथ फंक्शंस और पाथ वेरिएबल्स. बिकॉज इसके नॉलेज के लिए वी नीड टू नो द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑल्सो. अब इसके आगे दो कहानियां जो मैंने बताया कि इफ आई जस्ट शो द टू प्रॉपर्टीज का सेट ना, आई एम क्लेमिंग दैट आई एम नोइंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम. इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. वन इज कॉल्ड कंपोनेंट, अनदर इज कॉल्ड फेज. ठीक है. तो इफ आई से मान लो मेरे पास आई एम हैविंग लिक्विड वाटर एज माई सिस्टम. how many components it is having? तो it is having just one component, that is H2O. मतलब केमिकली क्या है वो, तो it is H2O molecules है ना. and how many phases I am having? It is just a liquid phase. So it is one system, one component, one phase system. But if I am having a container in which liquid water is in equilibrium with vapor water molecules, then I am having one component, that means H2O only, but I am having two phases. है ना? One is liquid phase, another is vapor phase. If I say I am having liquid coffee is having multiple components but still having one phase, that is liquid. है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया liquid coffee. ठीक है. तो दैट मीन्स वी नीड टू आइडेंटिफाई कि किसी सिस्टम के पास कितने कंपोनेंट कितने फेज है. उस पर डिपेंड करेगा कि जस्ट टू नो द स्टेट ऑफ द सिस्टम हाउ मेनी मिनिमम प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड. सो लाइक आई टोल्ड यू दैट system can have one or more components, system can have one or more phases. If I say liquid coffee, it is having multiple components but just one phase, and that is the liquid phase. If I am having ice floating over water, now I am having one component, H2 only. Ice is what? H2 only, है ना? Chemically it is same. Liquid water is H2O, ice is also H2O. So that's why if I say ice floating over water is my system, it is having just one component, and that is H2O, but it is having two phases now, solid and liquid phase. Okay. Like if I am having any ideal gas का sample, it is having one phase and one component. क्योंकि ideal gas को हम लोग कोई भी intermolecular force of attraction तो assume करते नहीं वहाँ पे, है ना. तो we can say that it is one phase, one component system. Is it okay? Any doubt in that? No, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बात समझ में नहीं आती, बच्चे हर बार कंफ्यूज हो रहे थे. इनफैक्ट मुझे अपने टाइम पे तो किसी ने समझाया भी नहीं था. जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, देन आई वेंट इनटू डिटेल. फिर ये सब चीजें निकल के आई कि कौन सी चीज मुझे जाननी है ताकि मैं समझ सकूं, ताकि मैं अपने बच्चों को समझा पाऊं, है ना. तो दिस वाज वन पॉइंट विच इज नॉट क्लियर टू मी इन माय प्रिपरेशन ऑफ जेई. ठीक है. नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बार बार हम लोग यूज कर रहे होंगे और बार बार मैं तुमको ये रिमाइंड करवा रहा हूँ कि इफ आई एम हैविंग, which is in your syllabus, if I'm having a system which is having just one component and one phase, जैसे मैंने बोला 1 mole of an ideal gas, या फिर मैंने बोला liquid water, ओके, या फिर मैंने बोला CO2 gas, या फिर मैंने बोला dry ice. Dry ice is what? If I say dry ice, anyone? Kritik, what is dry ice? The solid nitrogen dioxide. Solid? CO2 ना सर. Solid CO2, that is called solid ice. Okay. Solid CO2 को हम लोग solid dry ice बोलते हैं. Okay. So if I say dry ice, it is solid CO2. It is one component, one phase system, है ना. So now whenever we'll be having one component and one phase system, but just confirm me that you have understood what do you mean by one component, one phase system, है ना. या तो solid, या तो liquid, या तो gas. ठीक है. Even if I am having two different solids, they are having some interface, so it will not be, it is having same physical state, but that will be called two phase. Again, understand, if I am having two immiscible liquids, they are not mixed, so I'll be having an interface between the two liquid systems, so then it will be called, it will be said to have two phase, because both of them are in same liquid phase only, liquid state only, but they are having an interface. एक जगह कुछ और density मिलेगी, दूसरी जगह कुछ और density मिलेगी. So definitely, when we are saying phase, it can be different from physical state also. If I am having a system जिसमें कोई interface नहीं आ रहा है बीच में, तो it is having just one phase.
देयर इज एन इंटरफेस. जैसे मैंने एक बॉटल में आधा पानी भरा, उसके ऊपर वेपर है, एंड इफ आई से वो बॉटल के अंदर जो भी है वो मेरा सिस्टम है. नाउ आई एम हैविंग टू फेजेस, बिकॉज एक लिक्विड वाटर है, उसके ऊपर उसका वेपर भी है, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग टू फेजेस. ओके. वैसे ही मैंने बताया, इफ आई एम हैविंग टू डिफरेंट सॉलिड्स, they are placed together, even then I'll be saying that they are having two phases, because solid state तो physical state तो solid है, but I am getting an interface. एक से दूसरे में गया और वापस गए तो फिर दूसरा स्टेट मिल गया ना. दूसरा स्टेट मिल गया मतलब दूसरा एक इंटरफेस के थ्रू दूसरे सिस्टम में हम लोगों ने एंटर कर लिया. And that's why we need to understand very carefully that what is component, what is phase. Component का मतलब है chemical composition should be common, it should be homogeneous. That's one part. If I say phase, phase का मतलब है there should not be any interface within the system. Then we'll be saying that it is having just one phase. Is it okay, everyone? Now, when I am having a system with one component and one phase, then we say that other than mole, if I just know any two properties, I can find out all the remaining properties of the system. Very important line. This statement is very important. ये जो मैंने बताया है, if I am having a system with one phase and one component, system है, then if you just know two properties other than moles, मतलब moles पता होने चाहिए, and then उसके बाद if you just know two properties, you can find out all the other properties. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने बोल दिया 1 मोल ऑफ आइनाइडिल गैस जिसका प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना, जैसे मैंने प्रेशर और वॉल्यूम बता दिया ना, तो यू कैन कैलकुलेट टेम्परेचर, है ना, पीवी इक्वल्स एनआरटी से. तो आई नो द टेम्परेचर. जैसे तूने टेम्परेचर बता दिया ना, आगे मैं सिखाऊंगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, यू कैन कैलकुलेट दैट आल्सो. I'll tell you what is enthalpy, वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो. And that's why I told you, if you just need just know two properties other than moles, na, you are already having a unique state of that system. Is it okay? And that's why I told you, if I'm having, कोई मान लो 1 mole of gas मैंने दे दिया, if I'm giving you 1 mole of a gas, and मैंने उसका पीवी डायग्राम बता दिया, एंड मैंने बोला गैस जो है ना वो यहां से यहां जा रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो हम लोग बोल रहे हैं दिस वाज द इनिशियल स्टेट. ठीक है. एंड दिस इज द फाइनल स्टेट. जबकि यहां ध्यान से देखो, अदर देन मोल आई एम नोइंग जस्ट पी एंड वी, है ना. दिस इज V1, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज V2. अभी तो अपने को दो ही प्रॉपर्टी पता चली है, P एंड V, है ना, अदर देन मोल. बट आई एम क्लेमिंग दैट A इज इनिशियल स्टेट एंड B इज फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. स्टेट का मतलब मैंने पहले ही बताया था, इट वाज सेट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, है ना. यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, बहुत ही क्लियरली मैंने ये सब सेंटेंस जानबूझ के लिखा है, द सेट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज. एंड इट इज नॉट अबाउट वन और टू प्रॉपर्टी, it is the set of all the properties that will be called the state of system. Is it okay? Any doubt? तो लेक्चर 1 का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये जो मैंने बताया अभी, दैट वी नीड टू नो दिस पार्ट, कि अगर मेरे को, तो बाद में जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो हम लोग ये भी बात करते हैं वहां पे कि अगर मल्टीपल कंपोनेंट, मल्टीपल फेज हो गए, तो फिर हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड अदर देन मोल, सो दैट वी कैन गेट द फाइनल, वी कैन गेट द यूनिक स्टेट ऑफ द सिस्टम. इसका एक फॉर्मूला आता है, वो सब सिलेबस में नहीं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग यू दैट. बट इतना जानना जरूरी है कि इफ आई एम हैविंग वन कंपोनेंट एंड वन फेज, if I know just two properties other than moles, then I can know all the other properties. That means I can identify the unique state of the system. Is it okay? Next topic is the types of properties. दो तरह के मेन टाइप में डिवाइड किया गया, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेंस में तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन दिखते हैं. एडवांस में पहले दिखते थे, आजकल अगर दिखता है तो वो एक ऑप्शन हो सकता है एक पूरे बड़े क्वेश्चन का, है ना. यू कैन हैव वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें इट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, जिसमें बोलेगा प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इट इज ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, है ना. तो ये पूरी कहानी जो मैंने बताने की कोशिश की है ना, इसको कैसे पहचानेंगे, ये इंटेंसिव क्या एक्सटेंसिव क्या है, तो वी नीड टू नो वेरी क्लियर सेंटेंस. अगेन बहुत ही कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस लिखे हुए रहते हैं बुक्स में भी, और फैकल्टीज को भी मैंने देखा है बहुत ही कंफ्यूज्ड वे में पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए बच्चे या तो रट्टा मार रहे होते हैं या गिव अप कर जाते हैं. ठीक है. तो आई गिव यू द डेफिनेशन एंड आई हैव रिटन अ वेरी क्लियर डेफिनेशन ऑफ इट. आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट आल्सो.
कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी प्रॉपर्टी। ऐसे तो मैं लिस्ट दे रहा हूं तुमको, तो तुम रट्टा मार भी सकते हो, ठीक है। बट इसमें से जैसे आई विल बी हैविंग अ डिस्कशन ओवर टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि व्हाई आई एम पुटिंग दिस टू थिंग्स इन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे। बट एक बेसिक पार्ट में बताता हूँ। जो मैंने सेंटेंस लिखा है, अगेन बहुत ही क्लियरली है, बुक वाला सेंटेंस नहीं है, नहीं मिलेगा तुमको। वहां जो बोलते हैं ना, वहां कंफ्यूज करवाता है वो। जैसे वो बोलेगा ग्रेटर मोल्स के लिए ग्रेटर वैल्यू आ जाए, लेस नंबर ऑफ मोल्स के लिए लेस वैल्यू आ जाए, तो वो एक्सटेंसिव है। अब मैं वहीं पर पूछता हूँ, अगर ज्यादा मोल हो गया तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस भी ज्यादा होगा। वाई प्रेशर कैन नॉट बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, है ना, प्रैक्टिकली। तो विल डिस्कस इट वेरी क्लियरली कि what do you mean by extensive and intensive property, and how to identify whether a given property is an extensive or intensive property, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन का मेथड है ना, वो क्या है, देखो बहुत ही क्लियरली मैंने सेंटेंस भी लिखा है इसमें। properties which have values dependent on the size of selection in the system, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कैसे आइडेंटिफाई करने का है, तो बहुत ही क्लियर वे में इसको हम लोग पहचान सकते हैं। ये देखो कैसे हम लोग पहचानेंगे। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है। व्हाट आई विल डू ना, आई विल डिवाइड इट इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। कंपोनेंट्स नहीं बोल रहा हूं मैं, कंपार्टमेंट्स बोल रहा हूं। एंड दे कैन बी ऑफ अनइक्वल साइज ऑल्सो, जैसे ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ मैंने भी, ठीक है। आई डिवाइडेड दिस सिस्टम इनटू, देखो, 5 पार्ट्स, है ना। एंड इफ आई एम क्लेमिंग दैट सम प्रॉपर्टी एक्स इज कैन बी रिटन एज प्रोपोर्शनल टू the size of the compartment, then we'll be calling it an extensive property. Is it okay? जैसे अगर मैं मास लेता हूं, मास के लिए इस कंपार्टमेंट में M1 है, इसमें M2 है, इसमें M3 है, इसमें M4 है, इसमें M5 है। if I can identify that M1 will be proportional to the size of compartment which I have taken in the system, for that M2 will be proportional to, मतलब डबल अगर साइज किया तो मास भी डबल हो जाए, then definitely M will be called an extensive property, which is the example here, है ना। तो that is one part. But एक एडिशनल पार्ट ये भी आता है कि अगर ऐसा होगा ना, तो विल ऑल्सो राइट दैट M of the system can be written as M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5, है ना। तो ऐसा लिख पा रहे तो डेफिनेटली इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इज इट ओके? एक्सटेंसिव क्लियर है? नाउ I can have another property for which the value is not depending on the size of selection within the system. जैसे मान लो मैंने फिर से एक सिस्टम लिया एंड आई एम अगेन डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट साइज, ऐसा कुछ भी मैंने ऐसा डिवाइड कर दिया। दे मे बी इक्वल, दे मे नॉट बी इक्वल। एंड मान लो किसी प्रॉपर्टी y की बात हो रही हो, एंड इफ आई से दिस इज y1, this is y2, this is y3, this is y4, this is y5, and you find that irrespective of the size of selection within the system, if you get y1, y2, y3, y4, y5 सब equal है, and it is equal to y of system also, complete system के लिए भी वही value है, then we start saying that कि it is an intensive property. Is it okay? What is the example? जैसे टेम्परेचर, अभी मैंने अपना AC 24 पे करके रखा है। कोई एक कॉर्नर ले लूं या आधा रूम ले लूं या पूरा रूम ले लूं, क्या बोलूंगा? टेम्परेचर 24 डिग्री सी है ना। तो इसका मतलब है T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू T5 इज इक्वल टू T सिस्टम लिख सकते हैं ना। इफ आई कैन राइट दैट, आई विल से दैट कि T इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इज इट ओके? क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर वाला पार्ट। प्रेशर में क्या करेंगे हम लोग? तो प्रेशर में जैसे मैंने बताया, मैं कब से इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने लगा, जब से मुझे एक फैकल्टी का ही कॉल आया कि ये प्रेशर इंटेंसिव कैसे समझाते हो, ठीक है। दैट वाज हिज डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये समझाते कैसे हो, बिकॉज ही वाज नोइंग द फैक्ट कि प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट ही वाज कंफ्यूज। वो कंफ्यूजन मैं भी क्रिएट करता हूँ। पहले तुम बताओ कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? बिकॉज आई विल बी पुटिंग अ काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर दैट, so that you can have better clarity after that discussion. Adi, tell me, why pressure should be an intensive property? अगर नहीं मानते तो रिजेक्ट भी कर देना, नहीं सर आपने गलत लिखा है, विल टॉक अबाउट दैट, कि हो सकता है एक्सटेंसिव हो जाए। बट कैन यू गिव मी दैट आर्गुमेंट वेदर प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और नॉट? इफ इट इज इंटेंसिव, देन व्हाई? So pressure will be same only, I think, on ओके, P1, इफ आई एम हैविंग P2. अ गैस इनसाइड माय रूम, इट कैन एक्सर्ट, ऑलरेडी हम लोगों ने गैस स्टेट में देखा भी होगा तुमने कि एट एवरी पॉइंट वी टेक द सेम प्रेशर, है ना। नाउ आई गिव यू अ काउंटर आर्गुमेंट, ठीक है।
मान लो मेरे रूम में एयर है, एयर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, थोड़ा सा वाटर वेपर, यही सब होता है ना. कैन वी राइट P ऑफ एयर is equal to partial pressure of O2 plus partial pressure of N2 plus partial pressure of CO2 plus partial pressure of aqueous tension जिसको बोलते हैं, प्लस aqueous tension, है ना, ये सब मिला के थोड़ा सा आर्गन भी होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन. कैन आई राइट दैट? लिख सकते हैं ना, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये तो बोलता है. हाँ. नो, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसा ये लिखा है. कैन वी से प्रेशर इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? Kritik, either you agree with me or you give me the counter logic why I'm wrong in saying that pressure is an extensive property. पर आई I've एग्री, written. क्योंकि पार्शियल प्रेशर लेता है तो हम लोग ऐड करते हैं प्रेशर को। हम्म तो ऐसा ही तो वहां भी कर रहे थे ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू x ऑफ सिस्टम. ऐसा ही तो दिख रहा है ना, एक्सटेंसिव का डिटेलिंग तुम्हारे सामने है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ दिख रहा है ना देविका. Sir, is it because the partial pressures are also dependent on the total pressure or something like that? No, partial pressure has nothing to do with the total pressure. Yes, definitely we can relate the partial pressure with the total pressure, बट पार्शियल प्रेशर हैज नथिंग टू डू विद द टोटल प्रेशर. मान लो ऑक्सीजन अगर है ना, तो ऑक्सीजन जितने मोल्स है उसके हिसाब से वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना. नॉट टोटल प्रेशर विल बी डिपेंडिंग ऑन कि बाकी कौन सी गैस है जो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना. बट पार्शियल प्रेशर हैज नथिंग टू डू विद द टोटल प्रेशर. हाँ, like I told you, I can mathematically relate partial pressure with the total pressure, and that definition is partial pressure of a gas is equal to total pressure into its mole fraction, है ना. ये तो हम लोगों ने देखा है. But my argument for pressure being an extensive property is like extensive property में मैंने खुद लिखा है x is equal to x1 plus x2 plus x3 up to xn. Can I write that for pressure also pressure of air is equal to P of O2 plus P of N2? ऐसे ही तो लिख रहा हूं मैं. What is the fault or what is the faulty part of this argument? ये correct है, ये wrong नहीं लिखा मैंने, ये क्योंकि डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में पढ़ा है. दिस इज डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर. सो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया होता है ना, तो इधर मास पे डिपेंड ही नहीं करता ना, उस एरिया पे डिपेंड करता ना. मास पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर को भी राइट एज फोर्स बाय एरिया, राइट. और वो फोर्स कौन लगा रहा है? एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है. पार्टिकल्स लगा रहे हैं, पार्टिकल्स लगा रहे हैं. पार्टिकल्स फोर्स प्रेशर कैसे एक्सर्ट पार्टिकल्स करते को हैं? हम लोग बिकॉज मासलेस ऑफ देयर लेते हैं चेंज इन मोमेंटम ना. Particles are exerting pressure because change in their momentum. When they are hitting the wall, they are coming back. That means there is change in momentum, है ना. Even if there is no change in speed, there is change in velocity. Can you understand this language? ना. There is no change in speed, but still there is change in velocity when a particle is hitting and coming back from wall. Why? डायरेक्शन चेंज हुआ. हाँ, तो अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो मोमेंटम चेंज हुआ है. मोमेंटम इज अ वेक्टर. मोमेंटम चेंज हुआ है तो देयर विल बी सम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, है ना. तो मोमेंटम क्या है? मास टाइम्स वेलोसिटी, है ना. तो मास तो आ ही गया ना उसमें. ओके, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे. जब मैंने ये डेफिनेशन डिटर्मिनेशन का मेथड बताया था ना, आई वाज डिवाइडिंग द सिस्टम इनटू कंपार्टमेंट्स. Okay. Okay. When I write P air equals PO2 plus PN2 plus PCO2, these are not the compartments of the system, है ना. These are the components of the system. Is it okay? एयर बना है O2 N2 के मिलने से, बट मैं जब ये लिख रहा हूं ना, इफ आई हैव टू डिटरमिन ना कि इफ अ प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इसका मतलब ये है कि इसमें मैं पूछूंगा आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है, एंड यू विल से दैट कि इसका डायमेंशन ऐसा है. तो तुमने जो बोला है वो गलत नहीं है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द टेस्ट ऑफ द आइसक्रीम, है ना. इज इट ओके? अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अगर मैंने पूछा कि एक आइसक्रीम है, टेस्ट करके बताओ जरा कैसा है, चॉकलेटी है, ज्यादा मीठा है, कम मीठा है, थोड़ा सा टेंजी है, कैसा है? इफ आई आस्क यू दैट, तुम बोलोगे इसका जो है आइसक्रीम का जो है ना, उसका डायमेंशन जो है ना, इट इज 5 सेंटीमीटर वेट है, इसकी लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ये जो डेप्थ है या हाइट जो है वो इतना है. अगर तुमने ये बताया, यू आर नॉट टेलिंग मी एनीथिंग रॉन्ग.
but it has nothing to do with the taste of the ice cream, है ना? तो वैसा ही है, when I say P air is equal to P of O2 plus P of N2 plus P of CO2 plus aqueous tension plus P of argon, if there is some other gas that is also there. If I say that, na, I'm not saying anything wrong, but that thing has nothing to do with the identification of the type of property, whether it is an extensive or intensive. For determination of extensive or intensive, you have to divide the system into compartments, and you have to see that whether the given property is depending on the size of the compartment or not. If it is not depending on the size of the compartment, then it is an intensive property. If it is directly proportional to the, I'm not saying it is depending. When I say it is not depending, then it is intensive. When I'm talking about extensive, be very careful. मैं बोल रहा हूँ when it is directly proportional to size of compartment, not directly proportional to size का square, not size का root square root of size, not 1 by size, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. सिंपल डिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैथमेटिकल डिपेंडेंस की बात कर रहा हूं. इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द कंपार्टमेंट, देन ओनली इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इज इट ओके एवरीवन? क्लियर है ना? ये प्रेशर वाला आर्ग्यूमेंट याद रहेगा ना? कोई अगर सामने ऐसा रख दे तो यू कैन यू एक्सप्लेन दिस पार्ट. अब यही चीज मैंने उसको जब बताया था, ही वाज हैप्पी. अब उसके बाद से वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है क्लास में, ठीक है? एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अच्छा इसमें जब फैकल्टी कंफ्यूज हो रहा है तो बच्चे तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं. क्योंकि कभी कई बार होता है ना, हम लोग बोलते हैं बच्चे भी हाँ हाँ करके निकल जाते हैं ना, तो वी डोंट रियलाइज दैट कि अच्छा बच्चों को ये ऑब्वियस नहीं है क्या. बट कहीं से ये क्वेश्चन आने लगता है, देन वी रियलाइज अच्छा ये बच्चा हो सकता है नहीं भी समझ पाए, या फिर इस जोन में जाकर सोचा नहीं हो, अचानक से एग्जाम में आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, है ना? तो वी नीड टू नो. पहली बात तो देखो पता होना चाहिए कि प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट इसका आर्ग्यूमेंट कैन बी लाइक दिस, है ना? ओके. नाउ अभी ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव की बात थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग थोड़े एग्जांपल्स कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं. आई गिव यू सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो पहले तो आई गिव यू 5 क्वेश्चन जो बिल्कुल जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर. जो अभी तक डिस्कस किया उसी की बात कर रहे हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे. कृतिक, यू टेल मी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. जस्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जस्ट टू हैव द क्लियरिटी, मतलब वो मेरे कंफर्मेशन के लिए कि जो मैंने बोला वो बात तुमको समझ में आ गई. टेल मी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट शुड आई फिल? यहाँ पे यहाँ पे क्या फिल करने का है? कृतिक, थर्मोडायनेमिक्स बस अब मैं कहाँ है बस सोच रहा applicable? हूँ. मैंने नोट में लिख के बताया था और मैंने बोला था ये बार बार हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि आगे जाकर हमारा एक डिस्कशन होगा रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, वहां पर ये चीज हम लोग यूज करने वाले हैं. ओके देविका. So it's equilibrium. यस, वेरी गुड. सो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता है. अभी तो हम लोगों ने 3 टाइप के इक्विलिब्रियम की बात की, थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल, है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम or to the process in which system moves from one equilibrium state to another equilibrium state, है ना? Is it okay? Then everyone, Adi, tell me the answer of the second question. क्या क्या रखो? We have got 3 It's the first solutions. will be open system, Okay, very good. Second one. then closed system, Okay, and then isolate. very good. Any doubt? Rajik, tell me the answer of the third one. The least number of properties that other than moles that is required to completely characterize state of a system having one component and one phase is. कम से कम कितनी प्रॉपर्टी चाहिए अदर देन मोल्स? अदर देन एक ना. अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था, नोट भी दिया था और पूरा ग्राफ बना बना के दिखाया था. देखो दो कम से कम 2 प्रॉपर्टी चाहिए ना. दो 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 सॉरी. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मैं पूछूंगा बाद में, ये सब काम आता है इसलिए पूछ उसको रहा हूँ. इंक्लूड करके दो बोला था या? नहीं नहीं, अदर देन मोल. अदर अच्छा देन मोल अदर मैंने देन मोल प्रेशर और सॉरी. वॉल्यूम दोनों बताया था ना. हाँ नॉट ओनली प्रेशर एंड वॉल्यूम, कोई भी 2 प्रॉपर्टी उनको देना पड़ेगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि इसका स्टेट यूनिक है. सिर्फ प्रेशर में बोल दो ना 1 मोल ऑफ गैस इज एट 1 atm प्रेशर, इट डजंट गिव यू अ यूनिक स्टेट ऑफ दैट सिस्टम. ठीक है,
But if I say 1 mole of an ideal gas is at 1 atm pressure and it is having volume 22.4 liter, then it is giving you a unique state of that system. Okay, so that's why we'll be saying 2 is the minimum number required. Okay. Okay, Devika, fourth one. So state functions or state. Okay, properties are called state functions or state variables. You know, as their change in their values doesn't require any information about just require information about initial and final or not the path. Okay, Kritik, tell me the fifth one. Which are the two things which will be called non-properties or path function or path variables? दो चीजों का नाम मैंने लिया था वहां पे। ऋतिक, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम क्लास में, फिर इट इज नॉट गुड। मैं इतनी डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, यही जस्ट टू हैव बेटर क्लैरिटी, क्योंकि बाद में तुमको ये रट्टाने लगे, इस बात समझ में आनी चाहिए। दो चीजों का नाम मैंने लिया था। एनर्जी सर एक्सचेंज के दो हीट, फॉर्म होते हैं, हीट, वेरी सर गुड, हीट और और वर्क। हीट के अलावा बाकी सबको एक ही नाम दिया था मैंने। कोई भी एक्सचेंज जो हीट के अलावा हो रहा है ना बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई भी एनर्जी एक्सचेंज, दैट विल बी कॉल्ड अदर देन हीट वाज कॉल्ड व्हाट? वर्क। Work, very good. So heat and work are the two things which are actually the two different forms of energy exchange between system and surrounding, but the individual values of these two will require the detail of the path followed by the system, that means in which manner it is changing its properties, है ना? Then only we can talk about कि उसमें heat कितना था, work heat का कितना exchange हुआ, work का कितना exchange हुआ, that will require the knowledge of path. Path का मतलब है the detail of the process. Next question is about the types of properties, intensive or extensive. Okay, Adi, you tell me about mole temperature, mole volume and pressure. बताओ जरा, मोल क्या है? इंटेंसिव के लिए मैं आई लिखूंगा, एक्सटेंसिव के लिए मैं ई लिखूंगा. ओके, मोल के लिए बताओ आदि. So mole extensive. एक्सटेंसिव है, वेरी गुड. वॉल्यूम? वॉल्यूम भी extensive. ओके, क्योंकि मैंने कंपार्टमेंट में डिवाइड किया ना, अलग अलग कंपार्टमेंट के अलग अलग वॉल्यूम होगा, उनके साइज अलग, साइज का मतलब भी वॉल्यूम अलग ले लिया ना. एंड जब सारे के वॉल्यूम को ऐड करूंगा तो गेट द वॉल्यूम ऑफ द रूम, है ना. ओके, व्हाट अबाउट प्रेशर? Intensive. वेरी गुड, अभी तो डिस्कस किया ना. ओके, देविका, टेल मी द नेक्स्ट रो. टेम्परेचर, मास, डेंसिटी. टेम्परेचर. So temperature is intensive, ओके. mass is extensive, ओके, and density is extensive वाई एक्सटेंसिव? because both mass and volume are extensive. So एंड उनका रेशियो क्या हो जाएगा? density. इंटेंसिव हो जाएगा ना, बिकॉज If I am having one thing is डिपेंड नहीं करता. k1 into x, another thing is k2 into x, if I take the ratio, what will be the answer? Sorry, k1 sir? into x, k1 into x Okay, upon K1 k2 upon into x. yeah, So there is K1. no x, no? Yeah, okay. Okay. That's why it is an important thing that if I'm taking the ratio of two extensive properties, it will become an intensive property, है ना. रूम में जो गैस है उसकी डेंसिटी एक हाफ पार्ट में लूं कि पूरे कंटेनर में, पूरे रूम में ले लूं, इट विल बी सेम ना. So it's applicable ulta also. No? So if you take two ratio of intensive properties, then it will become an extensive. No, No. K1 by K2 तो why not? K1 by K2 ही रहेगा ना. if if k1 upon k2 लेना है, k1 into x भी नहीं है, k2 into x भी नहीं है, simply k1 upon k2 है, it will still be independent of x. Yeah, X is not there. That's Yeah. why extensive upon extensive will become intensive, intensive upon intensive will also be intensive, है ना. Okay, that's why this is intensive. Any doubt? Okay, next one. अच्छा, ये सब टर्म तुमको पढ़ाए नहीं है इसलिए तुमको पता नहीं चलेगा, बट लाइक इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है? वट एवर टाइप ऑफ एनर्जी सिस्टम इज कंटेनिंग ना, दैट विल बी कॉल्ड द समेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, है ना. तो इंटरनल एनर्जी को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मिलेंगे तो अलग अलग एनर्जी होगी, है ना. उन सबका समेशन विल बी द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज एक्सटेंसिव. ये चारों टर्म हम लोगों को पढ़ना है. इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी विल बी लर्निंग इट इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों एक्सटेंसिव है. एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी विल बी लर्निंग इट इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों भी एक्सटेंसिव है. ठीक है, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट टॉट यू दैट, because but I had to summarize every property which can be asked to you in one place, and that's why I've given you. Now, Razik, tell me molar volume. Extensive, I think.
कृतिक? मोलर वॉल्यूम, कृतिक? मींस पर मोल, राइट? पर मोल हाँ, वॉल्यूम पर मोल है ना, मोलर वॉल्यूम यही होता है। हाँ, तो इंटेंसिव। इंटेंसिव। आदि? एक ने एक्सटेंसिव बोला, एक ने So इंटेंसिव बोला। intensive. इंटेंसिव देखो ना, मोलर मोलर वॉल्यूम का वॉल्यूम अपॉन मोल। सी, अब मैं तुमको एक समराइज करके दे देता हूँ। व्हेनेवर दे आर आस्किंग यू ना, कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा दे दे, है ना, तो यू कैन अज्यूम ऑलवेज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सब समझिए मुझे। वो ऐसा सम कांस्टेंट इनटू एक्स ले लो, और एक्स का मतलब है कांस्टेंट इनटू साइज ऑफ सिलेक्शन, है ना, ऐसा लेके चलो। एंड कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो ना, दैट इज सिंपली अ कांस्टेंट। अभी देखो, मैंने दो एक्सटेंसिव का रेशियो लिया तो साइज ऑफ सिलेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या बच गया? कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई वी विल बी कॉलिंग इट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैंने कोई दो इंटेंसिव का रेशियो लिया तो इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, इट इज स्टिल कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, इट डजंट हैव एनी टर्म ऑफ साइज ऑफ सिलेक्शन, है ना। प्रोपोर्शनल क्या, साइज ऑफ सिलेक्शन का टर्म ही नहीं आने वाला। तो whenever you are having the combinations of any combination of intensive properties, it will always be intensive, है ना। बट इफ आई एम हैविंग एक्सटेंसिव का कॉम्बिनेशन, वी नीड टू सी दैट कि उसमें फाइनल रिजल्ट में प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सिलेक्शन आता है कि नहीं आता है ना। इज इट ओके? एंड दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। तो जैसे मैंने बोला मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम को वी कैन राइट मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम अपॉन मोल। अगर मैंने इसको लिख दिया K1 इंटू एक्स, एक्स इज साइज ऑफ सिलेक्शन, एंड इसको लिख दिया K2 इंटू एक्स, देखो ये क्या आ गया, K1 बाय K2, है ना। दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, and that's why we'll say that it is intensive, है ना। Any doubt? Clear ना? Kritik, Razik, clear ना? Okay. Heat capacity, Devika. Heat capacity. So is it extensive? Yeah, it is extensive because heat capacity is simply heat exchange per unit change in temperature, है ना। तो it doesn't have that term of intensive जैसा कुछ। अगर greater मैंने mass ले लिया ना, तो it will require greater heat capacity, है ना। And that's why we'll be saying that it is extensive. Now, if I ask you, Devika, again you, molar heat capacity. So intensive. Intensive, because heat capacity is extensive divided by mole, that is also extensive, and extensive upon extensive becomes intensive. Okay, Adi, specific heat. Specific heat का मतलब होता है heat capacity upon mass. Oh, so intense. Intensive again. Okay, molar enthalpy, Rajik. Molar enthalpy. सर इंटेंसिव होगा ना? इंटेंसिव हो जाएगा। इंथैल्पी वाज एक्सटेंसिव, ये मैंने एज एन इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दिया तुमको। ये चार टर्म तुमने अभी पढ़े नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी मैंने समराइज करके लिख दिया यहाँ पे। तो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, दीज आर द फोर अननोन टर्म्स व्हिच विल बी टॉट टू यू इन दिस चैप्टर, बट ऑल ऑफ दीज फोर प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव। तो मोलर एंथैल्पी विल बिकम इंटेंसिव। ओके, कृतिक, टेल मी मोलर एंट्रोपी। So will it also be intensive? इंटेंसिव, वेरी गुड। मोलर फ्री एनर्जी, देविका। मोलर फ्री एनर्जी, So intensive. इंटेंसिव। आदि, इंटरनल एनर्जी पर मोल, So intensive. intensive, very good. Rajik, refractive index, इंटेंसिव। intensive only है ना। Okay, Kritik, color. If I'm having a homogeneous system, जब भी ये intensive extensive लो तो you consider a homogeneous system. Color, रेड कलर का मान लो कि परफेक्ट Extensive. रेड कलर का मेरे पास एक ग्लास का पीस है, उसका आधा पीस लूं तो जो रेड बोलूंगा वो सेम होगा क्या पूरे पीस का?
Same, na? हाँ It's not depending on the size of selection, na? ये तो That's why extensive color will be called an intensive property. Adi, concentration. कोई भी मोलरिटी कोई भी ऐसा कंसंट्रेशन टर्म ले लिया. Intensive. इंटेंसिव बिकॉज जैसे मैंने मोलरिटी लिया तो मोलरिटी इज व्हाट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना. तो मोल इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, सो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव will become intensive. Any doubt in this part? Okay, we'll do one more question based on that. और यहां से तुमको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी. ये नाम तो मैंने सब लिख के दे ही दिए, बट समटाइम्स इफ आई कैन बी आस्क्ड a combination of these types of properties theoretically and they are asking you इसका रिजल्ट क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा. देविका, टेल मी एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव. So intensive. इंटेंसिव. ओके, वी नो दैट एक्सटेंसिव इज प्रोपोर्शनल टू, पहला एक्सटेंसिव मान लो k1 इंटू एक्स है, दूसरा k2 इंटू एक्स है. रेशियो विल बिकम k1 बाय k2 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना. ओके, कृतिक, इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव. तो नहीं पता. देखना ऊपर क्या बताता है इंटेंसिव को कैसे लेने का है. इंटेंसिव जब भी लेना है ना तो दीज आर द टू थिंग्स विच आई टॉक्ड अबाउट. एक्सटेंसिव ऐसे लेने का, इंटेंसिव ऐसे लेने का. इंटेंसिव का मतलब यू आर टेकिंग अ कांस्टेंट लाइक k1 ले लिया और दूसरे इंटेंसिव को मैंने ले लिया k2, रेशियो ले लिया. इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स? कांस्टेंट है ना, अभी भी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना. तो दैट्स व्हाई इंटेंसिव हाँ अपॉन इंटेंसिव विल स्टिल बी इंटेंसिव, है ना. intensive. इन दैट मैनर वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इज इट ओके? आदि, एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव. Extensive. Extensive only k1 into x upon k2 will become k1 by k2 into x, है ना. And that's why it will remain extensive. Okay, Rajik, intensive upon extensive. सर Intensive upon extensive. एक्सटेंसिव ही होगा. Okay, ध्यान से देखो जरा, इसको मैंने लिया k1 और इसको लिया k2 into x. हाँ तो Is it directly proportional to x? Inverse हो गया ना, हाँ inverse हो गया ना. And that's why we'll say that, मैंने बोला तो वहां पर numerically it should be directly proportional to x. तो हम तो बोलेंगे none. तो it is none. Okay, neither extensive nor intensive. कोई ऐसा एग्जांपल मिलेगा नहीं. theoretically we can create that, like mole per unit volume मैंने लिख दिया. ठीक है, तो we have defined it, but पता है कि ऐसा कोई यूज्ड प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नहीं है ना, एप्लीकेबल प्रॉपर्टी कोई ऐसी मिलती नहीं है. बट यू कैन डिफाइन इट लाइक मोल पर मोल नहीं, टेम्परेचर पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया. तो इट इज लाइक कि कुछ भी बोल दिया मैंने, कोई ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी एप्लीकेशन वाइज वो मिलती नहीं है. बट थियोरेटिकली इफ दे आर सेइंग इंटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, इट इज नीदर एक्सटेंसिव नॉर इंटेंसिव, है ना. ओके देविका, एक्सटेंसिव इनटू एक्सटेंसिव. So none. नन अगेन, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, है ना. विल अगेन से नन. ओके आदि, एक्सटेंसिव इनटू इंटेंसिव. So extensive. एक्सटेंसिव, वेरी गुड. ओके, ये तो वही हो गया. कृतिक बता दो, इंटेंसिव इनटू एक्सटेंसिव. फिर extensive. एक्सटेंसिव है ना. ओके देविका, एक्सटेंसिव प्लस माइनस इंटेंसिव, मतलब एक्सटेंसिव प्लस इंटेंसिव हो जाए या एक्सटेंसिव माइनस इंटेंसिव. So extensive. आदि, So extensive है शायद. कृतिक. फिर extensive ही लग रहा है. ओके रजिक. k1 into x plus k2, is it proportional to x? यस. नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x कॉमन ले सकते हैं क्या? कैन वी टेक x एज कॉमन? बट अगर x इंक्रीज होगा तो वो भी तो इंक्रीज होगा. मैंने यही बोला था, इट इज नॉट क्वालिटेटिव रिलेशन, इट इज क्वांटिटेटिव हाँ, रिलेशन. quantitative. क्वांटिटेटिव रिलेशन का मतलब होता है बीइंग प्रोपोर्शनल का मतलब x डबल किया तो वो भी डबल होना चाहिए एग्जैक्ट. सब इज इट हैपनिंग? हाँ. नहीं ना, तो दैट्स व्हाई विल से दैट इट विल बी नन अगेन. अलग. क्लियर ना एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन,
एक्सटेंसिव प्लस माइनस एक्सटेंसिव, कृतिक एक्सटेंसिव प्लस माइनस ये एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव हो जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि इसमें x कॉमन आ जाएगा ना, k1 मान लो मैंने k1 इंटू एक्स प्लस k2 इंटू एक्स लिखा, आई कैन राइट ना k1 प्लस k2 इंटू एक्स, है ना, and that's why it is being directly proportional to x. Is it okay? And that's why extensive plus minus extensive will become extensive only. This thing we are going to use later. ठीक है, जैसे मैं enthalpy जब बताऊंगा ना, तो I'll explain why enthalpy is also extensive. We'll talk about that. Okay. Devika, intensive plus minus intensive. So intensive. It will remain intensive, है ना? Okay, Rajik. Extensive plus minus intensive into extensive. ये दोनों मिलके क्या हुआ? एक्सटेंसिव हो, ये दोनों मिलके एक्सटेंसिव हो गया, और एक्सटेंसिव प्लस माइनस एक्सटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव। Extensive. So this will be extensive only. Okay. Kritik, last one. Intensive plus minus intensive into intensive. Kritik. सर इंसेंटिव अगर इंटेंसिव इंटेंसिव ही रह जाएगा ना, बिकॉज देर इज नो टर्म ऑफ साइज ऑफ सिलेक्शन, है ना, किसी भी सब जगह इंटेंसिव ही इंटेंसिव भरा हुआ है, तो ओनली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाया जाए, इट विल ऑलवेज बी इंटेंसिव ओनली. इज इट ओके? है ना? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो, नाउ वन मोर सेक्शन विल कवर बिकॉज आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, तो अभी मैं इधर पे एंड करूंगा. आई विल बी टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, क्योंकि अब सिस्टम प्रॉपर्टी या अपना स्टेट चेंज कर रहा है, दैट मींस इट विल अंडरगोइंग सम प्रोसेस, है ना. सो नाउ whenever a system is changing its state, that means it is changing its one or more properties in any way, then that will be called a thermodynamic process undergone by the system. Is it okay? So a thermodynamic process is a change of state of a system between one equilibrium state to another equilibrium state. Okay. Now, if I ask you how many thermodynamic processes can be there, anyone? फिर आपका वॉइस थोड़ा क्रैक हो रहा था, वापस रिपीट अभी कर सकते हैं? what I was saying ना, if I am having a system which is having set of properties, जिसको मैंने state of the system बोला, मान लो इसने अपना एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी चेंज किया है, in whatever manner it has changed, that will be called a thermodynamic process. Now if I ask you how many thermodynamic processes are there which can be undergone by a system between two given states, क्या कहेंगे? It can be, देविका के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है वो क्या बोलना चाह रही है. Tell me, how many processes can be there, thermodynamic processes? So I think it's infinite. इनफाइनाइट है ना, किसी भी तरीके से चेंज हुआ है ना. मान लो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों डबल होने वाला है, मेरी मर्जी, मैं पहले प्रेशर को चेंज करूंगा, बाद में फिर वॉल्यूम को चेंज करूंगा, या ऐसा कुछ भी, है ना. यू कैन हैव अ प्रोसेस इन विच पी इंटू टी कैन बी कांस्टेंट, वी कैन हैव अ प्रोसेस इन विच पी बाय टी कैन बी कांस्टेंट. एक प्रोसेस हो सकता है जिसमें मैंने टेम्परेचर को ही कांस्टेंट रखा हुआ है, बाकी सब चेंज चेंज कर रहा हूँ, है ना. तो वी कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, and every manner of change of property of properties will be called a thermodynamic process. And that's why, अब ये क्वेश्चन पूछने में मजा कब आता है, जब वो जो क्रैश कोर्स वाले आते हैं ना बाद में, जो कहीं से वो पढ़ के आते हैं, उनसे पूछो कितने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, तो वो उंगलियों पे गिनेंगे. सर आइसोथर्मल होता है, आइसोबैरिक होता है, आइसोकोरिक होता है, जितना वो जानते हैं ना वो सब नाम बोल देते हैं, और जितना काउंट कर पाते हैं उतना बोल देते हैं. बट वी नीड टू नो दैट कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कैन बी इनफाइनाइट, out of which there are few simple or more interesting processes. Okay, that we are going to learn. इसका मतलब यही नहीं कि उतने ही प्रोसेस होते हैं, you can have infinite processes. इनफैक्ट अभी मैं 4-5 प्रोसेस जो बताऊंगा जो फेमस है, जिनके कुछ नाम है, बाद में हम लोग बहुत सारे प्रोसेस करेंगे. दैट मींस आई एम हैविंग अ सिस्टम व्हिच इज हैविंग p into v square equals constant. अब इसका कोई नाम नहीं है, बट स्टिल वी आर लर्निंग इट एज अ प्रोसेस, है ना. तो ऐसे इनफाइनाइट प्रोसेस हो सकते हैं. वी कैन हैव p into e raised to minus v square is equal to constant. मेरी मर्जी, मैं कुछ भी फॉलो करूंगा ना. देन विल बी कॉलिंग दैट कि कोई भी तरीका हो चेंज करने का, दैट विल बी कॉल्ड a thermodynamic process. You can have infinite thermodynamic processes. There are some important जो मैंने बोला, that means these are some interesting और simple processes. जैसे पहला जो process है that is isobaric process.
कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। आइसोबैरिक का मतलब है प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। मान लो अपने पास 1 मोल ऑफ गैस है एंड इफ आई इट इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस लाइक दिस, जिसमें पीवी ग्राफ जो है ना वो मैं 3 तरीके से दिखा रहा हूँ, और पीवी ग्राफ से दिखा रहा हूँ। इफ आई से एक में सिस्टम जो है ए टू बी ऐसे गया, दूसरे में सिस्टम ए से बी जा रहा है बट इट इज गोइंग लाइक दिस, एंड तीसरे में सिस्टम ए से बी जा रहा है but it is going like this. Now, if I ask you what is the value of delta P, which is PV minus PA, Devika, tell me the value of it, PV minus PA. So 0. Okay, what about this process delta P, which is PV minus PA? How much is that? 0. And what about this one, PV minus PA? So also 0. It is also 0. So are these three all isobaric? Yes, sir. Are they all isobaric? No, sir. Only the No, first sir. one is isobaric. Yeah. Why only the first one? तीनों में तो डेल्टा पी को 0 लिखा है। But pressure has to remain constant. Okay, pressure constant का मतलब है dP must be 0. That means there should not be any change at all during the process or any state. At any state, there should not be any change in the process. So this is having also dP equals 0. This doesn't have dP equals 0 at all the points. dP is not equal to 0 at all at every state. At every state. And that's why we'll be saying that only the first one will be called isobaric. इसका मतलब है प्रेशर अगर y एक्सिस पे है तो विल बी गेटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रेशर अगर x एक्सिस पे आएगा तो विल बी गेटिंग अ वर्टिकल लाइन. So this is isobaric. These are not isobaric. Any doubt? Any doubt in this point? Similarly, we can have isochoric process जिसमें volume will be constant. When we say volume is constant, इसका मतलब है dV should be 0. Now you know the idea कि मैं जब dV बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? It should not change at all. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कम हो गया बाद में बढ़ के उतने पे आ गया. That is not isochoric. वॉल्यूम पूरे टाइम 10 लीटर इनिशियल है तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ऑलवेज 10 लीटर, है ना. ऐसा नहीं कि 10 से 12 गया वापस 10 आ गया तो इसको आइसोकोरिक बोलेंगे. नो, dV must be equal to 0, then we can say that it is isochoric. Is it okay? Next is isothermal. What will be constant isothermal में? Isothermal में what will be constant? Temperature, है ना. Temperature must be constant. Again, dt must be 0. So this is the third one. Fourth one is adiabatic process. Adiabatic process. Adiabatic process में we say that there should not be any exchange of heat between system and surrounding at all throughout the process. Okay, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर तक हीट रिलीज किया बाद में हीट गेन कर लिया एंड दैट्स व्हाई नेट एक्सचेंज वाज 0. ऐसा नहीं. डेल क्यू मस्ट बी इक्वल टू 0. हीट को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं. डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ हीट को जो है उसको हम लोग डेल क्यू बताते हैं, डी क्यू नहीं लिखते हैं. मैथ वाले सेंटी हो जाते हैं उसमें. ठीक है. तो केमिस्ट्री में we say that if I'm having a path function, it is inexact differential. Inexact differential का मतलब we cannot integrate it without knowing the path, and that's why those type of functions are, उनका डिफरेंशियल फॉर्म जो होता है वो डेल्टा से इंडिकेट करते हैं. डी से किसको करते हैं तो प्रॉपर्टीज को. देखो डी टी लिखा, डी वी लिखा, डीपी लिखा था, है ना. वहां डेल नहीं लिखा था, लेकिन जब क्यू लिखा तो डेल लिखा. बहुत सारे बुक में तुमको क्यू के सामने भी डी लिखा रहेगा, डब्ल्यू के सामने भी डी लिखा रहेगा, बट दैट इज नॉट मैथमेटिकली करेक्ट. बहुत सारे बुक लिखते हैं, अगर उन्होंने लिख दिया तो विल एक्सेप्ट दैट, बट इफ आई हैव टू राइट विल बी राइटिंग क्यू के सामने डेल लिखेंगे, डब्ल्यू के सामने डेल लिखेंगे बिकॉज वो पाथ फंक्शंस है. टी के सामने, वी के सामने, मोल के सामने, प्रेशर के सामने, ये सब प्रॉपर्टीज है, इनके सामने डी लिखेंगे. इज इट ओके? सो दिस इज योर फोर्थ थिंग, दैट heat should not be exchanged at all during the process. Okay, now one more last one is cyclic process. Cyclic process का मतलब होता है दैट जहां से चले वहीं आगे. सिंपल सी कहानी. इसका मतलब है फाइनल स्टेट मस्ट बी एग्जैक्टली सेम एज द इनिशियल स्टेट.
अगर ऐसा होगा तो डेल्टा ऑफ एवरी, एनी की जगह यहाँ पे एवरी लिख दो, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। कभी कभी होता है ना, आइसोबैरिक में तो डेल्टा पी जीरो था ना, बट आइसोबैरिक वाज नॉट साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक का मतलब है जहां चले वहीं पे आ गए, जहां से चले वहीं पे आ गए, इसका मतलब ऑल द प्रॉपर्टी शुड बी एग्जैक्टली सेम फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, है ना। दैट मीन्स डेल्टा ऑफ एवरी स्टेट फंक्शन मस्ट बी जीरो। अब इसी को तुमको डराने के लिए क्या करेंगे ना, वो ऐसा एक इंटीग्रेशन बनाएंगे और उसके ऊपर ऐसा एक लूप बनाएंगे। इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब है साइक्लिक प्रोसेस में। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं किसी भी स्टेट फंक्शन का डिफरेंशियल का अगर मैंने समेशन किया ना, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ही होता है। तो दैट्स व्हाई विल बी सेइंग दैट कि ये अगर लिख दिया तो दिस इज सेम एज दिस, या फिर इसी को बताने के लिए वो ऐसा कुछ ऐसा समेशन लिखेंगे, एंड देन उसके नीचे जो लिखेंगे ना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जैसे ए से स्टार्ट किया ना, तो ए से चल के हो सकता है वो सी पर जाए, फिर वापस डी पे जाए, वापस से ए पे आ जाए, ये ध्यान दें। ये इनिशियल और फाइनल सेम होना चाहिए, ये दोनों एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर उसके बाद उन्होंने डी ऑफ एनी स्टेट फंक्शन या एवरी स्टेट फंक्शन है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। एनी का मतलब ये कंफ्यूजन हो सकता है, कोई एक भी आ गया तो हो जाएगा क्या, नहीं। एवरी स्टेट फंक्शन का डी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी एवरी लिखो और यहाँ पे भी राइट डाउन एवरी। ओके, एनी डाउट? तो these were the five important processes like I told you. Isobaric में pressure must be constant, dp should be equal to zero for every at every point. Isochoric volume constant, isothermal temperature constant, adiabatic heat exchange must be zero. Cyclic process का मतलब final must be equal to initial, that means delta of every property or state function must be equal to zero during the cyclic process. अब होता क्या है ना, ये प्रोसेसेस को कैरी करने के दो मैनर होते हैं। वन इज कॉल्ड रिवर्सिबल मैनर, अनदर इज कॉल्ड इरिवर्सिबल मैनर। उसमें जाने से पहले आई गिव यू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस साइक्लिक प्रोसेस। इसको जरा फटाफट कर लेते हैं। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डिस्कशन विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वो लंबा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, फटाफट बताते जाओ। देविका, डेल्टा पी कौन कौन सा जीरो है, यही पूछा है। डेल्टा पी जीरो है कि नहीं साइक्लिक प्रोसेस के लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा पी विल इट बी जीरो? Yes, sir. यस ना, अभी जस्ट मैंने बोला एवरी प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज है ना, उन सब का डेल्टा विल बी जीरो, है ना। कृतिक, डेल्टा वी विल इट बी जीरो? यस, यस, डेल्टा ओके। या जितनी प्रॉपर्टीज है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये सब प्रॉपर्टीज है ना। प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सपेंसिव और इंटेंसिव, बट दे आर ऑल प्रॉपर्टीज ओनली, है ना। ओके, आदि, डेल्टा टी So zero. जीरो। रजिक, यू देयर? Yes, sir. या टेल मी, डीटी Yeah, नहीं, नहीं, zero. डेल्टा टी मस्ट बी जीरो। D, बीच में हो सकता है चीजें बदल जाए ना। DT does not, हाँ, वही, हाँ, कुछ हो सकता है। डी ऑफ टी विल नॉट बी जीरो। हो सकता है हाँ, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो बीच में, बट फाइनली वो सेम पे आके yes, sir. that says कि dt cannot be zero. हाँ, Okay, Devika, dp. So non-zero. Okay, Kritik, delta u. नॉट जीरो। Why not zero? Delta है ना, delta of any property और delta of every property will be zero, है ना। तो u was a property, है ना, extensive property था, it was a property, तो delta of u will be zero. आदि, delta h So zero. zero. Delta s, Rajik, Rajik, delta s. hello, yeah, हाँ Rajik, delta s delta S, yes, zero. zero. Devika, delta g So zero. zero. Okay, Kritik, q is heat. नॉन जीरो। नॉन जीरो, पाथ वेरिएबल है ना, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। सेम फाइनल पे भी आ गया तो जरूरी नहीं कि वो जीरो हो जाए, इट कैन हैव सम वैल्यू। विल टॉक अबाउट दैट जब हम लोग हीट और वर्क डिस्कस करेंगे ना। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल रहेंगे, एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस रहेगा, उसमें मैं हीट पूछूंगा, हीट एक्सचेंज कितना है, यू विल फाइंड दैट इट विल नॉट बी जीरो। समटाइम्स इट कैन बी जीरो ऑल्सो, बट डेफिनेटली जीरो होगा, दैट विल नॉट से। इसलिए यहाँ पे लिखा इज ऑलवेज जीरो, है ना। इट मे बी जीरो, इट मे नॉट बी जीरो। डब्ल्यू, आदि। So non-zero. ओके, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ डीएस, रजिक, Yes, sir. ये Close path. जीरो होगा, ये जीरो हो एक जाएगा। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ किया है दिस वन,
है ना, ये तो जीरो हो जाता है, वो वही है, डेल्टा ऑफ स्टेट फंक्शन है, ठीक है। यस ओके, देविका, लास्ट वन, दिस वन Yes, sir. Zero. जीरो होगा, है ना, क्लियर एवरीवन? Okay, so today we are going to finish this lecture. Next class, like I told you, we are going to talk about reversible and irreversible manner of carrying these process or any process. What are those things? इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस दैट क्लास। और थोड़ा टाइम पे आने की कोशिश करो यार, 15 मिनट्स तो अपना ऐसे ही चला जाता है ना, वेट करने में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करो। नेक्स्ट क्लास आई नॉट बी इन मुंबई, सो मैं देखता हूँ नेट की अवेलेबिलिटी कैसी है वहां पे जहाँ जा रहा हूँ। मोस्टली होने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बट आई लेट यू नो, है ना, थर्सडे को आई यस लेट यू नो कि क्या है। ओके, यस चलो क्लोज करते हैं ना। ओके, बाय एवरीवन।